Welcome to FK Super classes. In this video, we learn about buoyant force. What is buoyant force? Why some object floats on water while some other object sink in water. We will see why an iron nail sink while the ship floats on water. In the last video, we learned about the mass and weight. Weight is the force which attracts the body towards the earth. So weight pulls the object downward. To get more information and exposure on weight and mass and force of gravity, I will put the link in description box. Please go through the link and understand the things. What is buoyant force? When an object is immersed in fluid, it experiences an upward force that's called the buoyant force, and this property is called buoyancy. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डालते हैं तो फ्लूइड में डालने के बाद तो वो ऑब्जेक्ट जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है ऊपर के साइड में, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द buoyant force, and this property is called the buoyancy. The force of gravity pulls the object downward while the buoyant force pushes it upward. The magnitude of this buoyant force depend on the density of the fluid. जो buoyant force है वो बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करती है. मैग्नीट्यूड क्या होगा उस buoyant force का? वो डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे. जिस फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका buoyant force उतना ज़्यादा होगा. सो वेट जो है बॉडी का वो नीचे की तरफ पुल करती है और जो buoyant force है वो बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करता है. वेट और buoyant force का रिजल्टेंट ये डिसाइड करता है कि बॉडी सिंक करेगा या बॉडी फ्लोट करेगा. वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सी, व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का, देन बॉडी विल सिंक. इस केस में बॉडी आपका डूब जाएगा. अगर बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा है फ्लूइड के डेंसिटी से तो बॉडी डूब जाएगा. अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट का कम है फ्लूइड के डेंसिटी से तो बॉडी फ्लोट करेगा. व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन बॉडी विल फ्लोट. अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है buoyant force से देन बॉडी विल सिंक. अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है buoyant force से तो बॉडी विल सिंक. बॉडी विल सिंक. अगर बॉडी का वेट buoyant force से कम है, अगर बॉडी का वेट जो है आपका buoyant force से कम है तो बॉडी विल फ्लोट. बॉडी विल फ्लोट. Now, point to ponder. What will happen if density of object and fluid is same? अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट का और फ्लूइड का बराबर है तो उस केस में क्या होगा? Just please think. What will happen if density of object and fluid is same? If an object has the same density as the fluid, then the buoyant force will be equal to the gravitational force, that is weight, and the object will not be pushed up or down. It will remain in whatever position in the fluid it is released from. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी के बराबर है तो buoyant force वेट के बराबर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा. It will remain in whatever position in the fluid it is released from. Fine. If the buoyant force equal to the object's weight, the object will remain suspended at that depth. उसी डेप्थ पे ही रहेगा वो, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा. अगर बॉडी का डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी के बराबर है तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, if the buoyant force is greater than the object's weight, the object will rise to the surface and float. If the buoyant force is lesser than the object's weight, the object will sink. Archimedes principle. When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force.
दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जब बॉडी पार्शियली या फुल्ली इमर्स होती है लिक्विड में तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, दैट इज द बुओयंट फोर्स which is equal to the weight of the fluid displaced by it. See an example, एक बॉडी है, उसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया, उसका वेट आया 20 किलोग्राम, W1 is 20 किलोग्राम। जब उस बॉडी को हमने लिक्विड में इमर्स किया तो उसका वेट जो स्प्रिंग बैलेंस ने शो किया दैट इज वेट W2, वेट 2 दैट इज 15 किलोग्राम। बॉडी जो फ्लूइड में थोड़ा हल्का हो गया, वाई? बिकॉज ऑफ द बुओयंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगाया गया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट था उसका उसको मिनिमाइज कर दिया। सो हमें जो वेट मिला इन लिक्विड इन फ्लूइड दैट इज W2 इज 15 किलोग्राम। सो लॉस ऑफ वेट जो हुआ वो क्यों हुआ? बुओयंट फोर्स की वजह से। जितना लॉस हुआ वो क्या है? आपका बुओयंट फोर्स है। सो बुओयंट फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से? अगर एयर में इसका वेट 20 किलोग्राम था, फ्लूइड में इसका वेट 15 किलोग्राम है, तो जो लॉस ऑफ वेट है दैट इज 5 किलोग्राम, वो आपका बुओयंट फोर्स है। बिकॉज ड्यू टू दिस बुओयंट फोर्स देयर इज अ लॉस ऑफ वेट। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इस बीकर में जो है हमने पानी पूरा फुल कर दिया, अब थोड़ा भी पानी डालेंगे या लिक्विड फ्लूइड डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। पूरा एकदम बीकर को फुल कर दिया आपने। अब क्या हुआ कि हमने एक बॉडी को उसमें इमर्स किया। अब जो वॉल्यूम होगा बॉडी का इमर्स्ड पार्ट का, उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। ये फुल है, फुल ऑफ लिक्विड, दिस बीकर इज फुल ऑफ लिक्विड, इसमें अब कोई जगह नहीं है। हमने जैसे ही ऑब्जेक्ट को डाला, इसमें जो भी वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड जो है डिस्प्लेस हो जाएगी। और एग्जांपल ले ले, अपने घर में बाथ टब है, बाथ टब में फुल पानी भर दी हमने। अब उसके बाद कुछ भी उसमें अगर हम डालेंगे तो पानी जो है आपका डिस्प्लेस होगा, स्पिल हो जाएगा। तो जैसे आपकी बॉडी अंदर जाएगी तो जितना वॉल्यूम आपकी बॉडी का होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। वेरी लॉजिकल इट इज। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी, दैट विल बी बॉडी नॉट फ्लूइड, will be equal to the volume of displaced fluid. ओके, ये दोनों पॉइंट हमें अच्छे समझ में आ गया कि लॉस ऑफ वेट जो है वो ड्यू टू बुओयंट फोर्स हुआ, जो भी वेट में लॉस आया वो बुओयंट फोर्स है, एंड वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। नाउ आर्किमिडीज साहब ने क्या कहा कि जो बुओयंट फोर्स है ना वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ना उसके वेट के बराबर होगा। जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर ही बुओयंट फोर्स है। सो बुओयंट फोर्स हमने दो तरीके से निकालना सीख लिए। एक तो ये कि हमने एयर में उसका वेट लिया और जाकर के उस फ्लूइड में वेट ले लिया और हमने बता दी कि फ्लूइड में जो वेट का जो डिफरेंसेस रहा वो बुओयंट फोर्स है। दूसरा, हमने आर्किमिडीज साहब के हिसाब से बुओयंट फोर्स निकाल ली कि जो भी बॉडी को जो हमने डाला फ्लूइड के अंदर में और जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उस लिक्विड का वेट हमने मेजर कर ली और वही बुओयंट फोर्स हो जाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने ये भी सीखा कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये न्यूमेरिकल में बहुत सपोर्ट करेगा आपको। सी बाथ टब के एग्जांपल में, बाथ टब पूरा पानी से भरा हुआ था। जब हम बाथ टब में गए तो मेरा बॉडी का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से पानी जो है स्पिल कर गया उस वॉल्यूम के हिसाब से। तो the volume of the immersed part of our body will be equal to the volume of the displaced liquid। अगर हमारे बॉडी के immersed part का वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस पता चल गया हमें। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम डेंसिटी से तो हमें मास पता चल जाएगा, और मास को जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट पता चल गया, और वही वेट जो है आपका
आर्किमिडीज साहब के हिसाब से बुओयंट फोर्स है, तो इससे हमें बुओयंट फोर्स पता चल गया। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे अगर हम बाथ टब में गए तो मेरे बॉडी के इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ओके, इनटू जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में काफी सपोर्ट करेगा। बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको टोटल आपका वेट दे देगा ये आपको, और आर्किमिडीज साहब के हिसाब से जो बुओयंट फोर्स है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। It is used in designing ships and submarines. It is also used in lactometer. Archimedes principle को हम लोग lactometer में यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर में यूज करते हैं। lactometer प्योरिटी ऑफ मिल्क को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर से डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिटरमाइन करते हैं। आर्किमिडीज साहब के प्रिंसिपल की वजह से ही शिप्स एंड सबमरीन जो है फ्लोट करते हैं, वो सिंक नहीं करते हैं, जबकि एन आयरन नेल सिंक इन वाटर बट शिप्स एंड सबमरीन्स मेड फ्रॉम आयरन फ्लोट्स इन वाटर। आयरन नेल सिंक कर जाता है, डूब जाता है, लेकिन वहीं पे शिप जो उसी आयरन का बना हुआ है वो फ्लोट करता होता है। क्यों? जस्ट पॉइंट टू पॉन्डर, थिंक ओवर इट। बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर द वेट ऑफ द नेल इज मोर देन द थ्रस्ट फोर्स experienced by it, causing it to sink. However, a ship, although much larger than the nail, floats because the ship is hollow from inside and this space is filled with air, which reduces the average density of the ship lower than that of water. Thus, even with a small portion of the ship submerged underwater, the weight of the water displaced by it becomes equal to the weight of the entire ship. So, ये ship का जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसका डिज़ाइन ही जो है उसको फ्लोट कराती है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं बुओयंसी पे। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बुओयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट? किस डायरेक्शन में लगता है? ऊपर के डायरेक्शन में लगता है हमेशा। सो बुओयंट फोर्स जो है हमेशा जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन फ्लूइड और लिक्विड देन द बुओयंट फोर्स ड्यू टू द लिक्विड एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर? क्यों आ जाता है ऊपर? इसलिए कि इसका बुओयंट फोर्स जो है वो ज़्यादा है उसके वेट से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। फाइन, द बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक इज मोर देन इट्स वेट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट कम्स अप व्हेन रिलीज्ड अंडर वाटर। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। सी, mass is given 50 gram and volume is given 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? डेंसिटी इसका निकालना पड़ेगा सब्सटेंस का कि क्या ये डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है या कम है। अगर डेंसिटी वाटर से ज़्यादा आएगा तो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, और अगर बॉडी का डेंसिटी जो है वाटर से कम आएगा तो वो फ्लोट करेगा। See, density of water is given 1 gram per centimeter cube. So, mass of substance is given 50 gram. Volume of substance is given 20 centimeter cube. So, density हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। Density is equal to mass upon volume. तो mass is given 50 gram. Volume is given 20 centimeter cube. And it comes as 2.5 gram per centimeter cube. So, body का जो density है वो आपके वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और बॉडी का डेंसिटी यहाँ रहा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हेंस द बॉडी विल सिंक। एक अच्छा न्यूमेरिकल और देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। मास इज गिवन 500 ग्राम एंड वॉल्यूम इज गिवन 350 सेंटीमीटर क्यूब। Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? अगर डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो क्या ये बॉडी जो है जिसका मास जो है 500 ग्राम है और वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है,
तो क्या वो बॉडी सिंक करेगी या फ्लोट करेगी? बताए, सिंक करेगी या फ्लोट करेगी, इसके लिए हमें डेंसिटी निकालनी होगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज 500 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 350. सो डेंसिटी इज इक्वल टू 500 अपॉन 350, दैट कम्स 1.42. 1.42 आगे डेंसिटी आपकी, तो बॉडी क्या होगी? सिंक कर जाएगी, क्योंकि ये वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट पोर्शन जो क्वेश्चन का है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। मास ऑफ वाटर क्या होगा? तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फाइन। और हमने एक कॉन्सेप्ट जाना था कि वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड बॉडी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। अगर हम इमर्स्ड बॉडी का भी वॉल्यूम पता कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है। और जब वाटर का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो उसको हम डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास आ जाएगा। सिंस बॉडी जो है फुल्ली सिंक कर गया है, सो वॉल्यूम ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। फाइन। तो सो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज गिवन 350 और उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा हमारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी है और वॉल्यूम है इमर्स्ड पोर्शन का, पूरा सिंक कर गया था बॉडी, तो 350 का 350 आ जाएगा। फाइन। तो मास हो जाएगा आपका 350 ग्राम। सो काफी अच्छा क्वेश्चन ये। एक लास्ट टॉपिक आज का देख लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालेंगे तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। सो रिलेटिव डेंसिटी लिख सकते हैं हम डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और हमें क्यों निकालते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होता है कि CDS में जो है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और SI यूनिट में जो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये बॉडी वाटर से ज़्यादा डेंसर है या वाटर के रिस्पेक्ट में हल्का है। फाइन। सो RD टेल्स अस हाउ डेंसर इज मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इफ RD इज लेस देन 1 मीन्स मटेरियल इज लेस डेंसर देन वाटर। अगर RD लेस देन 1 है तो मटेरियल लेस डेंसर है, और अगर मोर देन 1 है तो बॉडी इज मोर डेंसर देन वाटर। अगर ज़्यादा डेंसर होगा तो सिंक कर जाएगा, लेस डेंसर है तो फ्लोट करता रहेगा। सिंस रिलेटिव डेंसिटी जो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है, सो इसकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी है ये। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बस ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। तो इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस है। रिलेटिव डेंसिटी से हमें ये फायदा होता है कि देख करके हम बॉडी को बता सकते हैं। अगर हमें पता रहेगा रिलेटिव डेंसिटी ये है तो हम ये देख के बता सकते हैं कि बॉडी विल फ्लोट और सिंक। हमें सबकी डेंसिटी अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।